मेरा नाम सुभाष महाजन है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ रडार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। अभी हम भारतवर्ष के प्रतिष्ठित स्कूल डलहौजी पब्लिक स्कूल में खड़े हैं। ये डलहौजी पब्लिक स्कूल जो है, ये सीबीएसई से संबंधित है। सीबीएसई का जो रिजल्ट है, 2 दिन पहले ही आया है और इस स्कूल के बच्चों ने काफ़ी बच्चों ने 90% से अबव नंबर लिए हैं और टॉपर भी रहे हैं। तो इस बारे में कितने बच्चे टॉपर रहे और किन्होंने टॉप पोजीशन हासिल की, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ डलहौजी पब्लिक स्कूल की कोऑर्डिनेटर शीतल जी हैं। तो शीतल जी, आपका द न्यूज़ रडार में बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। तो नमस्कार। कृपया आप मेरे को बताएंगे कि जो 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट निकला है, 12वीं में कितने बच्चे पास हुए और कितने टॉप आए, और इसी तरह 10वीं में कितने पास हुए और किन्होंने टॉप पोजीशन ली। जरूर सर। Actually, it fills our hearts with immense pride and joy when we celebrate this remarkable success of our students. Actually, it is a celebration more of their hard work. Not only students, of course, the faculty. And as far as, sir, the results percentage is concerned, we are very proud to announce that it is 100% pass percentage in 12th as well as class 10th. And you see, 134 students, they appeared for board exam from Dalhousie Public School in class 10th. And I feel so proud once again, to tell you, to share with you all that out of 134, 131 children have earned first division. Not only that, there are, 24 students, they have scored above 90%, and 9 students, they have scored above 95%. So we actually are very thankful to the faculty here. They are so hardworking, and sir, it is always, the constant support that we get from our director chairman, sir, Dr. Dhillon, our principal, sir. So it is actually a collective effort of all. And of course, the secret, it lies in the daily routine. And I would also like to tell you that our class 12th, 88 students, they appeared for board exam. And out of 88, 80, of course, it is 100% pass percentage, as I've already told you. And out of 88, sir, 83 secured first division. And 16 students in class 12, they scored above 90%. That is so encouraging, and that is another benchmark that our children, with their hard work, they have set for us. Another thing, of course, how can I not mention the names of the school toppers? So in class 12th, Kanishk has made us very proud, and he has scored 97.4%. And if I talk about the school topper in class 10th, it is Nikisha, who scored 98.2%, and another student, Dushyant, who scored 98%. So, yes, we feel blessed to have such wonderful children, and parents from all over India and abroad, who trust Dalhousie Public School and send their wards here to us. And we always say, sir, for the for we, it is another student, but for parents, they are sending their whole world to us. So we also take care and nurture these students as our own, and that's why this, phenomenal result that our children have given. And I would also like to add that, when we are celebrating the success, it is never only, the high scores or the percentage. It is a testament to the hard work, dedication, and the, excellence. And that is what defines our school community. Thank you so much, sir, for. जैसे ही हमें जी द न्यूज़ रडार को पता लगा कि जी। डलहौजी पब्लिक स्कूल ने बच्चों ने टॉप किया और 100% रिजल्ट आया, जी जी जी। तो हमारी टीम भी यहाँ पहुंची आप सबको मुबारक देने के आपका लिए। बहुत तो बहुत आप सभी धन्यवाद बच्चों हमारे। को द न्यूज़ रडार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू अच्छा सर। शीतल जी, मेरा एक प्रश्न रहेगा कि जी इस सर। स्कूल में कितने हॉस्टल में बच्चे पढ़ते हैं और कितने डे स्कॉलर बच्चे हैं? सर, हमारे पास
इस वक्त जो हैं अराउंड 1100 बच्चे जो हैं सर स्कूल में हैं, जिनमें से हमारे जो हैं अराउंड 900 बच्चे जो हैं वो boarders हैं, they are in the hostel. And as I told you sir, they come from all over India and also abroad, and we are doing our best to give better citizens to India and the world. इस स्कूल का बड़ा नाम है और ये भी सुना जाता है कि स्कूल में एडमिशन आसानी से नहीं मिलती और इस स्कूल ने अपना पूरा नाम बनाया है। तो स्कूल में आप बच्चों को पढ़ाई के साथ और क्या-क्या कराते ताकि उनका ऑल राउंड विकास हो? बिल्कुल सर, ये बहुत ही ज़्यादा एक क्रूशियल चीज़ होती है कि सिर्फ देखिए इन टुडेज़ टाइम इट्स नॉट ओनली एकेडमिक्स, you know, it's not only academics which is going to matter. Of course, when we talk about the overall development of the child, that is very important because that is what is going to set them apart from others, from the crowd. So yes, आपको ये बच्चे भी आपको बताएंगे कि how we have in our routine, in our curriculum, along with the curricular activities, we have so many activities, whether it is sports events or it is the oratory events. We make them give them lot of opportunities to participate in activities like debates and declamations, which are happening at inter-house level, inter-class level on monthly basis, and there are teachers to support them. And we have we have quizzes, we have colloquiums, and we have a model united nation. So yes, we are not only producing the children who are doing academically well, but yes, they are smarter beings that we are trying अच्छा to create. शीतल जी, ये यहाँ पे जो है भारतवर्ष के किन-किन प्रदेशों से बच्चे पढ़ते हैं? और मैंने तो ये भी सुना है कि यहाँ एनआरआई बच्चे पढ़ते हैं। एनआरआई जी। बच्चे क्यों पढ़ते हैं? मेरा दूसरा प्रश्न ये भी है कि बाहर के देशों के आप यहाँ के भारतवर्ष के तो पढ़ते हैं। जी, एक तो जी। मुझे ये बताओ भारतवर्ष के किन-किन स्टेटों से या जगह से पढ़ते हैं और दूसरे एनआरआई जो बच्चे पढ़ते हैं जी, वो जी, जी। कौन-कौन सी जगह से पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं एनआरआई बच्चे? बिल्कुल। स्कूल की पढ़ाई अच्छी है इसलिए पढ़ते हैं या किस वजह से पढ़ते हैं? सर देखिए, जब भी एक बोर्डिंग स्कूल की बात आती है तो डेफिनेटली पेरेंट्स के मन में एक चीज़ है कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन मैटर्स अ लॉट. तो डेफिनेटली दैट इज इनकलकेटेड इन देम. And as far as the children coming from different parts of India is concerned, अगर आप इन बच्चों से भी पूछेंगे तो you'll come to know which all different places they are from. Like we have children coming from Punjab, we have children coming from Rajasthan, Maharashtra, Andhra Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh, and Jammu Kashmir, Leh Ladakh, and children. Is there any state's name that I have not taken? Right. Leh Ladakh, I said that, right? And then we have children from United States, we have children from UK, we have children from Belgium, and many from Philippines. So Germany also we have the children coming from. So it is the trust, and as you know that we have this is the 54th year of 5th year of the school running. So it is the trust that has been built. So we also have the children of our ex-students, who come here to study. So that definitely, keeps us motivated. यहाँ ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो स्कूल है इसके जो चेयरमैन और डायरेक्टर हैं डॉक्टर कैप्टन जी.एस. ढिल्लों, वो सैनिक पृष्ठभूमि से हैं और सैनिक पृष्ठभूमि होने के कारण इस स्कूल में सबसे बड़ी बात है अनुशासन का होना, जो इस स्कूल में सबसे पहला है अनुशासित होना। और इस स्कूल में एक और बड़ी उपलब्धि ये है कि इस स्कूल में एक बीजी पार्क है। जो बीजी पार्क है वो मिस्टर ढिल्लों साहब ने अपनी देश की सभी माताओं को समर्पित किया है और वहाँ की सबसे बड़ी बात है कि वहाँ तीनों सेनाओं के जो हथियार हैं, पनडुब्बियाँ हैं, वहाँ पे प्रदर्शित की हुई हैं। और ये जो स्कूल का एक ऐसा इकलौता स्कूल है पूरे इंडिया में कि जहाँ एक डिफेंस पार्क है जिसका नाम बीजी पार्क है और इस पार्क में सभी सेनाओं की जो पनडुब्बी हुई वो प्रदर्शित की गई हैं और ये डलहौजी का एक हिल देखने वाला स्थान बन गया और जो भी पर्यटक यहाँ पे आता है वो इस डिफेंस पार्क में जरूर जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये पहला ऐसा स्कूल है जहाँ पे एक डिफेंस पार्क है। तो अभी मैं कुछ बच्चों से बात करूँगा स्कूल में जिन्होंने टॉप किया है। तो हमारे पास इस वक्त 10वीं क्लास में
जिसने टॉप किया है। निकिशा। क्या नाम है बेटे आपका? निकिशा। निकिशा। हाँ जी। निकिशा, आपने 10वीं में टॉप किया है, हाँ तो जी। पहले हमारी तरफ से, द न्यूज़ आर की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो आपने मच। अपने पेरेंट्स का नाम भी रोशन किया है और स्कूल का भी नाम रोशन किया है। तो आप थोड़ा बताएंगे कि आपने ये जो इतने नंबर लिए हैं वो कैसे कैसे लिए, आपका पढ़ने का तरीका क्या था, ताकि दूसरे बच्चे भी देखें कि पढ़ने का क्या, तो आप बिल्कुल ज़्यादा पढ़ती थी या थोड़ा पढ़ती थी, थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताएं। I think that intensive study is better than extensive study. So that was the plan that I followed. I studied year round, definitely, and I would say that rather than spending 4 to 5 hours, I would spend an hour, but I would do it well. So I would pick a subject that I was weak in at that very moment, and I would pick it for an hour, not more, because more than that, I find it's difficult to concentrate. But when you are studying, when you're on that study table with your books right in front of you, I think you must be fully focused. Your focus must not be anywhere else. And when you're participating in recreational activities, I think you must focus on those. So that is what I did. I have scored 98.2% and therefore have achieved the title of the school topper. And I would like to thank my parents and the school as well for being so supportive towards me. For without them, I don't feel I could have done this well. अच्छा, आप ये बताएंगी, ये जो आपने इतने नंबर लिए हैं और टॉप आई हैं 10वीं क्लास में, अभी आप 11वीं 12वीं भी यहाँ करेंगी, हाँ जी। तो आप इसमें स्कूल को कितना क्रेडिट दी? मेहनत तो आपने की, पर इसमें ये भी मानती हैं कि स्कूल का भी योगदान है, अच्छे स्कूल का योगदान है, और अध्यापकों का भी योगदान है, हाँ जो जी, जहाँ बिल्कुल। पढ़ाते टीचर, उनका कितना योगदान मानती अपने योगदान के अलावा? I wouldn't go into digits now, but the fact remains that a child's hard work is entirely motivated by what the teachers say. Teachers आपको motivate करेंगे पढ़ने के लिए, तो बच्चे का मन करता है पढ़ने का. So that is what happened with me as well. From the very first day, my teachers were quite intent on letting me know what I needed to do, what my schedule would look like the next year. So the teachers have motivated me to work hard, and that's what I did. I listened to my teachers, who were wonderful people, wonderful folks. My parents, who again motivated me so much. I would stay up late at night studying, and I find it's rather a bad habit of mine. I fall asleep when people around me fall asleep. So my parents would stay awake so that I would not fall asleep. So they would sacrifice their rest to ensure that I study. And the teachers as well, they would spare their free periods clearing my doubts. And I find that that has been such a great factor in my success. इसी तरह हमारे साथ बात करने के लिए स्कूल के और भी बच्चे हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? अमीशा देवी। क्या नाम? अमीशा। अमीशा। अमीशा, आप कहाँ से? मैं यहीं से हूँ, हिमाचल से। दिल- हाँ जी, तो अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th में हुई हूँ। तो आपके भी 10वीं में काफ़ी नंबर आए हाँ हैं, जी। तो आप उसको कैसे लेते हैं और ये स्कूल कैसा है? ये स्कूल बहुत अच्छा है। आई थिंक जितने भी मेरे नंबर आए, मतलब कि जो टीचर्स हैं और जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से आए हैं। तो और आप क्या बताएंगे, आप कैसे पढ़ती थी, कैसे मैनेज करती थी सारे कामों को, जैसे पढ़ाई में कितना टाइम लगाती थी और दूसरे कामों में कितना ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है पढ़ाई को, बस ये होता है कि जो क्लास में पढ़ रहे हैं हम, जो टीचर्स बोल रहे हैं उसको अच्छे से सुने, रेदर देन गिविंग मतलब सो मच टाइम टू बुक्स। ये है। आपका क्या नाम है? माय नेम इज सिनी। सिनी, आप कहाँ से? बिहार। बिहार से? बड़ी दूर से बिहार से पढ़ने आई हो। तो ये कैसा लगा स्कूल आपको? It is good. I'm over here as a boarder. I enjoyed the routine over here, and as it make me strict to the studies even and to the other things included, which is good. And I feel like if I will be over here in 11th, 12th, I will be more close to my studies and the other activities too. So it's gonna be help me later or even too. आप बाहर के जो प्रदेशों के बच्चे हैं उनको क्या बताना चाहेंगे कि वो स्कूल में आए, पढ़े, कैसा स्कूल है ये? As first thing, I want to like to talk about over the environment. As in the land areas, we can see in the summers even that there is so in summers they're too much hot, so you won't be even
able to focus on your main subjects as per the studies are like hotness, everything. So over here, if you get the good environment, temperature, and the people surrounded you in a good way, so you will be able to focus on your subjects and the all over activities. आइए कुछ और बच्चों से आपका क्या नाम बेटे? मनसहज। अच्छा, आप कहाँ से? मैं पंजाब से हूँ। पंजाब से कौन सी जगह से? अमृतसर। तो आपने भी टॉप किया, आपको भी मुबारक जी हो। हाँ। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसे स्कूल की वजह से टॉप आए या अपनी रूटीन की वजह से आए? जी, मैं स्कूल की वजह से भी बहुत ज़्यादा मेरी मदद हुई है। जितने टीचर्स थे उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किए मेरी। जहाँ-जहाँ पे मदद होती थी तो वो अपना टाइम मेरे लिए निकालते थे और मेरे को समझाते थे कि कौन-कौन सी चीज़ें मैं कहाँ पे ख़राब कर रहा हूँ। आपका क्या नाम है? सर अर्नब गर्ग। अर्नब गर्ग। हाँ जी। आपने भी टॉप किया है, हाँ जी। तो आप बताएंगे उसके बारे में कुछ? जी, देखिए अगर मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो मैं जुलाई तक अपनी पढ़ाई में सीरियस नहीं था। मेरे को रियलाइज़ेशन जुलाई के बाद हुई है अपनी रियलाइज़ेशन। उसमें मैं अपने सबसे ज़्यादा क्रेडिट अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा। क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प की कि मेरे को अपना पोटेंशियल रियलाइज़ कराने के लिए कि मैं ये कर सकता हूँ। उससे पहले मेरे अंदर इतनी सीरियसनेस नहीं थी। मैं मैथ्स में बहुत वीक था। मेरे जो मैथ्स टीचर थे वो तो अब खैर स्कूल छोड़ के चले गए, बट उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मेरी इतनी हेल्प की उन्होंने कि मेरे मिड टर्म में 56 थे 80 में से, बट एज़ दे हेल्प्ड मी आई गॉट 100 इन बोर्ड्स एग्ज़ाम आउट ऑफ इन मैथ्स। तो ये थे हमारे साथ कुछ बच्चे। आइए, इस स्कूल में बाहर के प्रदेशों के भी बच्चे पढ़ते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये सारे बच्चे जो जितने खड़े हैं इनमें कुछ लोकल हैं और कुछ बाहर के प्रदेशों के बच्चे हैं। कोई पंजाब से है, कोई यूपी से है, कोई दिल्ली से है, अलग अलग स्टेटों से पढ़ते हैं। और इस स्कूल में जो बाहर के फिलीपीन और बेल्जियम से भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप कहाँ से हैं बेटे? हाँ जी, आई एम फ्रॉम बेल्जियम। बेल्जियम से आप एनआरआई बच्चे हुए ना, मैं एनआरआई कहूँगा। तो आप यहाँ पढ़ने क्यों आए? लाइक कल्चर सीखना था इंडिया का और भी काफ़ी चीज़ें। इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर। तो बेल्जियम में इंडियन कल्चर नहीं मिलता? नहीं मिलता है, मतलब इतना क्वांटिटी में नहीं मिलता जैसे यहाँ इंडिया में अपना कल्चर सीखने को और मिलेगा, तो इसलिए। तो आपने कल्चर में क्या क्या सीखा? यहाँ के स्कूल में क्या सीखा और पढ़ाई में क्या स्कूल सीखा? में इंडिया के बारे में सीखा, इंडिया की इंडिपेंडेंस वगैरह सारी स्टोरी सीखी इंडिया की, जो कल्चर वगैरह है सब कुछ। चलो, आपको कैसा लगा स्कूल? स्कूल अच्छा। अब कौन सी क्लास में आप? जी, मैं 10वीं में हूँ। हमारे साथ इसी तरह एक और एनआरआई बच्चे हैं। क्या नाम बेटे? सुखमन। आप कहाँ से? आई एम फ्रॉम फिलीपींस। फिलीपींस। यस। आप भी इसलिए आए कि इंडिया का कल्चर देखा जाए या किस वजह से आए? एक तो ये स्कूल काफ़ी डिसिप्लिन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को और इन्वायरमेंट अच्छा है यहाँ का, इसलिए ये रीज़न भी है यहाँ पे ज्वाइन करने का। एंड यहाँ पे मैं इंडियन कल्चर बारे भी सीखने के लिए ये बहुत अच्छे स्कूल है। मतलब यहाँ पे कैसे यहाँ पे ट्रेडिशंस हैं इंडिया के, वो हम यहाँ पे सीखने को मिलता है। तो ये स्कूल इसलिए मैंने चूज़ किया, ये अच्छा है। चलो, आपने काफ़ी कुछ सीखा बाहर से हाँ आके जी, है। हाँ जी। तो ये हमारे साथ थे डलहौजी पब्लिक स्कूल के बच्चे। जो आप देख रहे हैं सारे बड़े अनुशासित हैं और अच्छे तरीके से, और इन्होंने सभी ने टॉप किया है। तो मैं एक चीज़ यहाँ आपको और बताना चाहता हूँ कि इस स्कूल ने अभी थोड़े दिन हुए हैं, अपना थोड़े साल हुए हैं अपना गोल्डन जुबली मनाई है। 50 साल हो गए स्कूल को यहाँ खुले हुए। तो गोल्डन जुबली बनाई है, तो उसके लिए भी आपको और पूरे स्कूल प्रबंधन को मुबारक हो। और यहाँ मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि इस स्कूल का इतना नाम है कि अभी इस स्कूल ने चंडीगढ़ में डलहौजी पब्लिक स्कूल के नाम से एक नया स्कूल भी खोला है, जो ये बताता है कि इस स्कूल की इतनी मांग है कि अब ये चंडीगढ़ और उसके आसपास के बच्चों को भी अच्छी पढ़ाई देगा। तो मैं इसके लिए सभी बच्चों का धन्यवाद करता हूँ, अच्छी पोजीशन लाने की मुबारक देता हूँ। और शीतल मैडम जी, आपका भी बड़ा धन्यवाद, और द न्यूज़ डार की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं और मुबारक। थैंक यू। तो ये थे स्कूल के धन्यवाद।